So good morning, everyone. We will start with this chapter today, solid state. In your previous classes, rather in class 9th and 10th, you have done that there are basically main जो हमारे surroundings में matter है, that exist in three physical states mainly जो हमें observe होती हैं अपने आसपास, and these physical states are these physical states are solid, liquid, and gaseous state. So there are basically three physical states: solid, liquid, and gas. Gaseous state we have done in class 11th. Liquid state भी 11th syllabus में था बेटा, उसमें थोड़ी सी properties मतलब liquid के involve हैं. That is you can say property like vapor pressure, which we have already discussed in chapter solution. उतना उससे बल्कि हमने ज़्यादा ही कर लिया उस chapter में. तो liquid की एक important property vapor pressure, surface tension, viscosity. These three properties were there in class 11th, but that topic was deleted by CBSE that year. Otherwise, solid state is in class 12 syllabus. Okay, so gaseous and liquid states, you know that both of these are collectively known as fluids because both of these states of matter do not have a fixed shape. Particles can move around, hence they have a tendency to flow. वो एक जगह से दूसरी जगह एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी फ्लो कर सकते हैं और गैसेस जो हैं वो रैंडम in any direction they can flow. But this property of fluidity is not present in solid state because particles are fixed to their positions. Solid state अपने जो lower class में packing देखिए particles की, particles are very closely packed in case of solids and they cannot move around in the solid. वो अपनी boundaries के अंदर ही रहते हैं. They do not leave those fixed positions. अपनी positions को वो छोड़ नहीं पाते solid के अंदर. That is the reason particles cannot move. They just vibrate on their position. ठीक है, और इसीलिए solids rigid होते हैं. They have a definite shape, definite volume, and they cannot leave the fixed positions. Hence, they cannot move within the solid. So solids do not have fluidity. Rather, they have rigidity. Okay. So this is some general property of solid that you have already done in lower classes. No need to go for that. Here, these all points are there. Solids do not have, solids have definite mass, volume, and shape. Intermolecular distances are short. जो intermolecular space है particles के बीच में, that is negligible, you can say, or very less. Intermolecular forces are very strong because of the very close packing. And constituent particles, whether they are atoms, molecules, or ions, have fixed positions and can only oscillate about their mean position. अपनी position पे oscillate या vibrate कर सकते हैं, but they cannot move around within the solid. Hence, solids are incompressible and rigid. आप solids को compress नहीं कर सकते pressure लगा के, and you cannot change the shape of solids. Okay, so these are general characteristics of solid state, which you already know. And actually, on what basis, or you can say, what is the basic criteria of classifying various substances into, you can say, solid, liquid, or gas? Means on what basis matter exists in variety of states? Anyone who can tell? Unmute yourself and tell. What is the basic criteria or what is the basic characteristic which determines whether the substance will exist in solid state, liquid state, or gaseous state? Intermolecular forces. Yes, intermolecular forces and थर्मल एनर्जी. थर्मल एनर्जी डिसाइड करती है पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी. तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के ओपोजिंग है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगे, थर्मल एनर्जी अगर कम होगी तो, एंड पार्टिकल्स विल हैव ग्रेटर थर्मल एनर्जी, तो दे विल हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू मूव अराउंड एंड दे विल हैव negligible or least intermolecular forces. So these two characteristics are important to determine the physical state of any substance at room temperature. Otherwise तो हर एक चीज आप किसी भी state पे ले जा सकते हो, उसको cool करके, pressurize करके, in what manner, but at room temperature जो चीज अपने आप naturally जिस form में है वो उसकी actual physical state consider होती है. ठीक है, तो room temperature पे ये दोनों factor assign करेंगे कि substance solid में रहेगा, liquid form में रहेगा या gaseous form में. तो नेक्स्ट इज द एंटायर जितने भी सॉलिड्स हम अपनी सराउंडिंग्स में देखते हैं बेटा, चाहे वो मेटालिक है,
plastics हैं, कुछ rubbers हैं, glass है, variety of solids you can find. But all these solids are basically of two types. Term है यहाँ पे amorphous and crystalline solids. क्रिस्टलाइन का मतलब आप थोड़ा सा टर्म का अगर मीनिंग देखो तो क्रिस्टल से रिलेटेड है. क्रिस्टल्स होते हैं डेफिनेट ज्योमेट्री के. आप कोई भी क्रिस्टल देखो, डायमंड के क्रिस्टल्स हो गए या फिर कोई स्टोन्स हैं जो एक डेफिनेट ज्योमेट्री आपको बाहर से ही मिलती है. और अदरवाइज शुगर क्रिस्टल्स देख लो, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स देखो, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हम लोग जब लैब में बनाते हैं तो उस टाइम पे एक फाइन शेप में वो होते हैं क्रिस्टल्स. तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मतलब होता है ऑल दो सॉलिड्स विच हैव अ डेफिनेट रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. जो उसके पार्टिकल्स हैं वो एक रेगुलर ज्योमेट्री में अरेंज्ड है. बट अमॉर्फस सॉलिड्स आर दो सॉलिड्स. अमॉर्फस वर्ड जो है एक ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है और उसका मतलब होता है नो फॉर्म, मतलब जिसकी कोई रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है, किसी भी फॉर्म में वो रह सकता है. तो दैट टाइप ऑफ सॉलिड इज नोन एज अमॉर्फस सॉलिड. एंड अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर जो एग्जांपल्स आपने आप सराउंडिंग्स में देखते हो, जितने भी प्लास्टिक्स है, ऑल प्लास्टिक्स आर एक्चुअली पॉलीमर्स. ठीक है, तो ऑल पॉलीमर्स वेदर दे आर प्लास्टिक, पॉलीथीन इन एनी फॉर्म, इफ यू फाइंड समवेयर, जैसे टेफ्लॉन हो गया आपके अराउंड, और पॉलीमर्स हैं लाइक ये जो जैसे स्विच बोर्ड वगैरह बनते हैं, दिस इज दिस नेम भूल गई मैं, मेलामाइन होता है एक, और एक बेकेलाइट. बेकेलाइट के बने हुए ये मेलामाइन की क्रॉकरी आप घर में नॉन अनब्रेकेबल क्रॉकरी की फॉर्म में जो यूज करते हो, मेलामाइन है वो सारा. एंड जितनी भी प्लास्टिक बॉडीज किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की होती है वो सारा इस तरह के सॉलिड्स हैं जिनकी कोई डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं है. रबर, ग्लास, ऑल दीज सॉलिड्स आर, आपको कहीं भी किसी भी पॉलीमर के एग्जांपल के फॉर्म में आ रहा है, जैसे पॉलीथीन, पॉलीयूरिथेन, पॉली इथाइलिन और पॉली विनाइल क्लोराइड, पीवीसी हो गया, पीटीएफई हो गया, ये सारी एग्जांपल्स जो है दे आर अमॉर्फस सॉलिड. ठीक है, इनको कभी भी क्रिस्टलाइन कंसीडर नहीं करना. 1 मार्क क्वेश्चन में कई बार एग्जांपल्स देके क्लासिफाई करने को दे देते हैं कि इनमें से क्लासिफाई करो कौन से अमॉर्फस है एंड कौन से क्रिस्टलाइन है. ओके, तो ऑल पॉलीमर्स, रबर, प्लास्टिक्स एंड ग्लास, दीज आर अमॉर्फस सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जितने भी मेटल्स हैं, ऑल मेटालिक सॉलिड्स, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, जितने भी कोवेलेंट सॉलिड्स हैं, all these are collectively termed as crystalline solids because crystalline solids have a definite geometry of or definite arrangement of particles in their crystal structure. और उनके crystals की shape की वजह से ही term जो है वो crystalline solid यूज हुआ है. Here you can see this, एक छोटा सा वीडियो में 1 मिनट शेयर कर रही हूँ आपको, थोड़ा सा ये पार्टिकल्स का अरेंजमेंट. एक्चुअली दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट 3 डायमेंशनल पैकिंग और उसके कितने टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर करते हैं. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू टेक इंटरेस्ट इन दिस चैप्टर, समझने में और इसको विजुअलाइज करना एक्चुअली. तो देन आई विल टेक हेल्प ऑफ सम यूट्यूब वीडियोस बिकॉज उसमें बहुत अच्छे से एनिमेशंस के साथ एक्सप्लेन की हुई है डेफिनेट ज्योमेट्री. आज तो थोड़ा जनरली है, बट आगे आगे चैप्टर में जब आप ज्यादा क्रिस्टलाइन सॉलिड जब हम देखेंगे देन यू विल कम टू नो व्हाट टाइप ऑफ ज्योमेट्रीज आर दीज. So this is about amorphous and crystalline solids. Here actually crystalline solid जो है बेटा, उनकी एक जो definite, जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है क्वार्ट्स का. क्वार्ट्स के क्रिस्टल्स अगर आपने कभी देखे हो तो बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल से ज्योमेट्रिकल शेप होता है. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर आप कंसिडर करो ये एक जस्ट इफ यू कंसिडर दिस, ये एक जो आपको एक सिंगल रिंग मिल रही है जो बार बार रिपीट हो रही है, इफ यू सी दिस एंटायर, ये एक सिंगल ऐसी यूनिट को सेलेक्ट कर लेते हैं इनको स्टडी करने के लिए क्रिस्टलाइन सॉलिड को. और ये सेम जो एक यूनिट है ये आप देखो रिपीटेडली पूरे 3 डायमेंशनल रेंज में. अभी ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाई हुई है क्वार्ट्स की. 3 डायमेंशन में अगर हम देखेंगे इसको आप किसी भी डायरेक्शन में एक्स वाई जेड में अगर इसकी स्ट्रक्चर चेक करते हो तो यू विल फाइंड द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ दीज पार्टिकल्स. ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट इन विच द सेम ज्योमेट्री इज रिपीटेड throughout the crystal structure, entire crystal structure is known as long range order. कि बुक में टर्म होगी, अंडरलाइन कर लेना इफ यू हैव योर बुक्स विद यू, अदरवाइज नोटबुक में भी नोट कर सकते हो. ये कुछ टर्म्स हैं जिनके मीनिंग्स आपको क्लियर होने चाहिए. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर. लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब है द सेम रेगुलर पैटर्न जो एक छोटे से यूनिट
सेलेक्ट अगर हम कर लें, उसमें आपको जो एक स्ट्रक्चर मिल रहा है वो सेम स्ट्रक्चरल पैटर्न विल बी रिपीटेड over the 3-dimensional space of the entire crystal structure. Okay, so same regular geometry आपको मिलेगी throughout the crystal. So this type of order or the arrangement of particles is known as long range order. और इसके opposite अगर हम amorphous solid में देखें तो amorphous solids have short range order. फॉर एग्जाम्पल ये एक रेगुलर जो यूनिट सेल सपोज हमने सेलेक्ट किया, ये यूनिट ऐसे एक दो जगह पे आपको मिल जाएंगे या आसपास और भी हो सकते हैं, बट थोड़ा दूर जाने पर आपको कोई और ही तरह का अरेंजमेंट मिल रहा है. मींस थ्रू आउट द क्रिस्टल द पार्टिकुलर अरेंजमेंट विल नॉट बी सेम. So that kind of geometrical arrangement is called short range order. So amorphous solids have short range order, whereas crystalline solids have long range order of particles. So this is about their geometry first. And एक और important property, अब ये इस तरह का same geometrical pattern है, तो number of atoms, ये एक 3-dimensional structure दिखाया है. This is the structure of quartz and this is the structure of sodium chloride. तो sodium chloride में भी अगर आप एक देखो cubical सा pattern अगर आप उठा लो तो that cube, उसका साइज, सारे ये जो बॉन्ड्स हैं इनका साइज और इनके एंगल्स, एवरीथिंग रिमेन्स सेम. दैट इज व्हाई इट्स नोन एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, दे आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर. एनाइसोट्रॉपिक का मतलब होता है, ये भी टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको, जिनके मीनिंग क्लियर होने जरूरी है. एन आइसोट्रॉपिक, एनाइसोट्रॉपिक इज द ऑपोजिट ऑफ आइसोट्रॉपिक वर्ड. तो एनाइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है कि ये सपोज करो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है आपके पास, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का, इसमें इस तरह से या तो कोई कैटायन एनायन है या कोई दो तरह के पार्टिकल्स हैं. अगर कोई कोवेलेंट सॉलिड है जैसे सिलिकॉन कार्बाइड हो गया या व्हाटएवर, तो पार्टिकल्स का डेफिनेट अरेंजमेंट है यहाँ पे. ये सपोज कैटायन हो गई या एनायन हो गई, इन दिस वे दीज आर अरेंज. तो इफ वी सी एनाइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है, अलग अलग डायरेक्शंस में से अगर हम देखें एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, तो सॉलिड्स का जो अरेंजमेंट है, पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, वो थोड़ा वैसे लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, बट मतलब क्या है कि अगर हम एक पर्टिकुलर प्लेन पे देखें, जैसे ये लाइन अगर हम यहाँ से ला रहे हैं, जस्ट वेट, सपोज इफ वी चेक द पार्टिकल्स फ्रॉम दिस डायरेक्शन ए टू बी, तो एंड फ्रॉम सी टू डी, तो एज यू कैन सी हियर यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स. यहाँ पर आपको सारे एक ही टाइप के एटम्स आ रहे हैं और इस तरफ दूसरे टाइप के, और यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में आपको दोनों टाइप के एटम्स एक ऑल्टरनेटिव मैनर में मिल रहे हैं. तो इस तरह से अलग अलग डायरेक्शंस में एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर वाले क्रिस्टल्स के अंदर सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स नहीं आते अगर हम पर्टिकुलर डायरेक्शन से देखें. तो ड्यू टू दिस रीजन some physical properties like electrical resistance हो गया या फिर उनका refractive index हो गया, फिजिक्स में आप प्रॉपर्टीज पढ़ते हो, ये प्रॉपर्टीज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए अलग अलग डायरेक्शन में अलग होती हैं. क्लियर? बिकॉज दे हैव डिफरेंट पार्टिकल्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस. whereas amorphous solids में क्योंकि एक रेगुलर ज्योमेट्री है ही नहीं, तो वो ओवरऑल जो उनकी प्रॉपर्टीज आती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो हर डायरेक्शन से सेम आ जाती है. दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज आइसोट्रॉपी. नेक्स्ट, और एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट. मतलब जो मेटल्स आप देखो या आयनिक कंपाउंड्स देखो, इनका एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि इन सारे एटम पार्टिकल्स के अंदर जो बॉन्ड्स हैं, मींस द अट्रैक्शन फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन दीज पार्टिकल्स इज ऑफ एग्जैक्टली सेम स्ट्रेंथ, बिकॉज द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन सेम मैनर एट अ सेम डिस्टेंस. सो all of these bonds you can say can be broken down together at a time at the same temperature, hence they have a sharp melting point. Okay, so this is about anisotropic nature, that they have different position of atoms at different directions. Next, here is the arrangement of anisotropic solid. Anisotropic solid is, in Greek, amorphous means no form, and in this way, as you can see here, जब ये 3-dimensional crystal generate हो रहा है, तो you can see that geometry is not at all repeated. कुछ एक जगह पे same हो भी सकती है, but it's not compulsory that it will remain same throughout the solids. So amorphous solids have a short range order. Examples: rubber, glass, all plastics, polymers, etc. And amorphous solids do not have sharp melting points because
everywhere they have different types of atoms and different type, मतलब अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो इसलिए उनकी डिस्टेंस की वजह से जो बॉन्ड्स हैं वो भी डिफरेंट स्ट्रेंथ के, हेंस दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, सो दीज कैन बी मोल्डेड एंड ब्लोन इनटू डिफरेंट शेप्स. एंड अमॉर्फस सॉलिड को आप क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय स्लो कूलिंग देयर मेल्ट्स. इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, जो लाइक ग्लास की विंडोज जो होती हैं वो बीच बीच में से कई जगह पर आपको एकदम से मिल्की हो जाता है ग्लास कुछ टाइम के बाद. अगर मतलब एक्चुअली क्या होता है, डे टाइम और नाइट टाइम में डिफरेंट टेम्परेचर्स रहते हैं, क्योंकि दीज विंडो पेन्स आर एक्चुअली एक्सपोज टू द आउटर एनवायरनमेंट एक्चुअली. तो ग्लास को जब हम अलग अलग टेम्परेचर पे हीटिंग कूलिंग इफेक्ट चलता रहता है, तो उसके अंदर कहीं कहीं पर क्रिस्टलाइन कैरेक्टर आ जाता है, एंड दैट मेक्स द ग्लास मिल्की इन नेचर. मोरओवर ये जो बेटा अमॉर्फस सॉलिड्स हैं, इनकी एक टेंडेंसी होती है स्लाइटली फ्लो होने की, क्योंकि इनके पार्टिकल्स अपनी फिक्स पोजीशन पे मतलब रिजिड उतने नहीं होते जितने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव पार्टिकल्स एग्जैक्टली फिक्स्ड ऑन देयर पोजीशन, बट दीज पार्टिकल्स हैव स्लाइट टेंडेंसी टू मूव अराउंड. So these are also known as pseudo solids or super cooled liquids because they have a very slight tendency to flow. ठीक है, और ये फ्लोइंग टेंडेंसी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है कि अगर हम किसी ओल्डर बिल्डिंग्स के विंडो ग्लासेस को ऑब्जर्व करें, बहुत पुरानी अगर कोई बिल्डिंग है, नॉट कि अभी 10 to 15 ईयर्स नहीं, उससे भी बहुत पुरानी बिल्डिंग 30 to 50 ईयर्स पुरानी अगर किसी बिल्डिंग के विंडो ग्लासेस को ऑब्जर्व करें, तो दीज ग्लासेस हैव स्लाइटली हायर थिकनेस एट द बॉटम. उन ग्लासेस के बॉटम पार्ट ज्यादा थिक हो जाते हैं एज कंपेयर टू दी लाइक जैसे इस तरह से वर्टिकल ग्लास है तो बॉटम पे थिकनेस ज्यादा होगी, अपर पोर्शन में थिकनेस कम होगी. तो दैट इज बिकॉज इतने सालों में धीरे धीरे वो अमॉर्फस सॉलिड्स फ्लो होते हुए बॉटम पे, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से लोअर पार्ट में ज्यादा डेंस हो जाएंगे, तो दैट इंक्रीजेस द थिकनेस. तो हेंस ग्लास और दीज अमॉर्फस सॉलिड्स आर आल्सो नोन एज स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स. लिक्विड क्योंकि इसलिए लिक्विड टर्म दे रहे हैं क्योंकि दे कैन फ्लो लाइक लिक्विड, बट दिस फ्लूइड टेंडेंसी और दिस tendency to flow, fluidity is not very large as liquids or gases. They have a very small tendency to flow, and that also takes like itne years lage us glass ko bhi flow hone mein. So that is why they are known as super cooled liquids. कि liquids को बहुत ही ठंडे temperature पे अगर हम super cool कर दे तो इस तरह के solids बनते हैं जिनको हम amorphous solids कहते हैं. तो crystalline solids can also be converted into amorphous solids by rapidly heating and cooling, and crystalline solid character लाया जा सकता है amorphous solids में by you can say slow cooling. And these crystals are isotropic in nature. Amorphous solids isotropic है, means उनमें किसी भी डायरेक्शन से अगर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करते हैं तो दे हैव एग्जैक्टली सेम वैल्यू, बिकॉज एज अ होल दैट पर्टिकुलर सॉलिड हैव एन एवरेज प्रॉपर्टी, जो हर एक डायरेक्शन में से एवरेज निकल के आती, तो इट्स नोन एज कि उनको आइसोट्रोपिक, क्योंकि कहीं पर भी एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है. So this is about this geometrical pattern. So here in your book also it is explained with the help of this diagram in quartz and quartz glass. Glass जो है वो एक तरह का amorphous solid है, और quartz crystal की फॉर्म में जब होता है, quartz is silica SiO2. SiO2 जब quartz फॉर्म में है तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और ग्लास की फॉर्म में है जिसको हम क्वार्ट्ज ग्लास भी कह सकते हैं, नॉर्मल ग्लास भी कह सकते हैं, दिस इज आल्सो सिलिका. तो ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन के ही पार्टिकल्स हैं दोनों में, बट जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न दे आर क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स. तो इस तरह से एंटायर सॉलिड जो है वो 2 टाइप के हैं. अब ये आपकी बुक में एक अनाइसोट्रॉपी के लिए भी एक्सप्लेन किया हुआ है डायग्राम. अदरवाइज ये टेबल है, आप जिसको जब भी रिवाइज करना है बेटा, अगर आपको टर्म्स याद है तो यू कैन ओनली गो थ्रू दिस टेबल कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंस क्या है. तो शेप, डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप क्रिस्टलाइन सॉलिड का है, इनकी अमॉर्फस की कोई शेप नहीं है, इरेगुलर. they melt at a sharp point, they do not melt, or they gradually soften over a range of temperature, and that is why they can be molded into variety of shape. ये जो पॉलीमर्स हैं इनको हम इतनी वैरायटी में शेप्स में इसीलिए कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव अ काइंड ऑफ
शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है इनका, तो दे कैन बी मोल्डेड। क्लीवेज प्रॉपर्टी, ये एक इंपॉर्टेंट और प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, जब आप इनको किसी भी शार्प टूल से कट करते हो, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये ऐसे मेटल्स हैं, लिथियम, दे कैन बी कट इवन विद अ नाइफ आल्सो। तो व्हेनेवर दीज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कट विद द नाइफ, तो इनके जो न्यू जनरेटेड सरफेस होंगी वो बिल्कुल स्मूथ होंगी, क्योंकि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बिल्कुल रेगुलर है। तो आप जिस प्लेन पे कट कर रहे हो एग्जैक्टली सेम टाइप के पार्टिकल्स ही आएंगे, so they have exactly plain and smooth cleavage property, whereas amorphous solids do not have, or you can say they generate a kind of regular surfaces, irregular surfaces when they are cut with a sharp tool. Heat of fusion, fusion की heat क्या होती है, melt करने के लिए कितनी heat required है, this is known as enthalpy of fusion. तो fusion enthalpy, because इनके सारे bonds एक ही साथ एक ही टाइम पे ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि सब बॉन्ड सेम डिस्टेंस पे हैं, तो सेम टाइप के हैं, सेम स्ट्रेंथ वाले हैं, हेंस दे हैव अ डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डेफिनेट है, दैट इज व्हाई दे हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, एंड दे डू नॉट हैव डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बिकॉज द एंटायर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड। एनाइसोट्रोपिक नेचर, और इसका आइसोट्रोपिक नेचर है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हर एक डायरेक्शन पे सेम है, इसके लिए डिफरेंट है क्रिस्टलाइन के लिए। नेचर ट्रू सॉलिड्स है, और अमॉर्फस सॉलिड्स आर स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स, और ऑर्डर ऑफ पार्टिकल अरेंजमेंट इज लॉन्ग रेंज इन क्रिस्टलाइन, शॉर्ट रेंज इन अमॉर्फस। क्लियर हो गई डिफरेंसेस। अब इसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स हैं नीचे आपको बुक में यहाँ पर, तो दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। एक्चुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, मतलब मोनो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी कहते हैं उनको, या फिर पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मोनो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जो एक ही पर्टिकुलर रेगुलर ज्योमेट्री थ्रू आउट द क्रिस्टल रिपीट होती है। पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनमें एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री है वो थोड़ी देर तक चल रही है, उसके बाद फिर एक डेफिनेट ज्योमेट्री है जो कुछ और, मतलब पॉली क्रिस्टल्स, एक ही लॉन्ग रेंज ऑर्डर थोड़ी थोड़ी प्लेसेस पे मिलता है, मतलब एकदम इरेगुलर भी नहीं कहेंगे हम इसको। तो दिस इज अ काइंड ऑफ पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मेटल्स जो हैं वो जनरली पॉली क्रिस्टलाइन कंडीशंस में एग्जिस्ट करते हैं। एंड अमॉर्फस सॉलिड्स एग्जांपल्स, ग्लास, रबर, पॉलीमर्स, टेफ्लॉन, ठीक है। अमॉर्फस सिलिकॉन इज अ काइंड ऑफ फोटोवोल्टेक मटेरियल। तो एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट because classification can be asked in 1 mark question. For example, this 1.3 question, 1.2 why solids are rigid and definite volume, that you know. 1.3 एक बार consider कर लेते हैं। Classify the following as amorphous or crystalline solids. Polyurethane, poly word किसी के साथ लगा हुआ ना, polymer होगा, तो polymers are amorphous solids. Naphthalene, ये organic solid है बेटा, it's a crystalline solid. बेंजोइक एसिड क्रिस्टलाइन सॉलिड। कंपाउंड्स याद रखो, जितने भी कंपाउंड्स हैं, वेदर दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑल कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन एक पॉलीमर है, इसका जो केमिकल नेम एग्जैक्टली है वो है पॉली टेट्रा फ्लोरोइथीन, PTFE इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो टेफ्लॉन इज अ काइंड ऑफ पॉलीमर विच इज अमॉर्फस सॉलिड। पोटेशियम नाइट्रेट कंपाउंड है, क्रिस्टलाइन होगा। सल्फेन कंपाउंड है, क्रिस्टलाइन, सॉरी सल्फेन आ जाएगा पॉलीमर के अंदर। पॉलीविनाइल क्लोराइड इज ऑल्सो, तो ये पॉलीमर्स हैं सारे, तो दीज आर अमॉर्फस। फाइबर ग्लास क्रिस्टलाइन में आ जाएगा। एंड कॉपर इज अ काइंड ऑफ crystalline solid. Refractive index of a solid is observed to have same value among all directions. Comment on the nature. Would it show cleavage property? Yes, who will tell? Refractive index of a solid is observed to have same value along all directions. Comment on the nature of this solid. Who will tell? Hurry up. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिजिकल प्रॉपर्टी है जो अलग अलग डायरेक्शन से सेम ही आ रही है, तो दैट मीन्स द सॉलिड इज आइसोट्रोपिक इन नेचर। और आइसोट्रोपिक सॉलिड कौन से होते हैं? अमॉर्फस सॉलिड। तो वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी? नो। ऑन कटिंग इट विद अ शार्प टूल इट विल प्रोड्यूस इरेग्युलर सर्फेसेस, so it will not show clear cleavage property. Okay, next बेटा, जितने भी crystalline solids है, crystalline solids are further classified into 4 types. ये भी एक टेबल में ही मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ on this
table is there. ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अभी हमने पहले थ्रू आउट हमारे एनवायरमेंट में जो सॉलिड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं यूनिवर्स में, वो दो टाइप के हैं, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस. क्रिस्टलाइन मींस रेगुलर ज्योमेट्री, अमॉर्फस मींस विदाउट एनी फॉर्म, मॉर्फ, ओके, विदाउट एनी ज्योमेट्री. अब क्रिस्टलाइन जो ज्योमेट्रिकल सॉलिड्स हैं वो भी फर्दर 4 टाइप्स के हैं. वैसे तो और भी टाइप में उनकी क्लासिफिकेशन है, बट दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ बॉन्डिंग फोर्सेस. बॉन्डिंग फोर्सेस मतलब सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स आपस में एक साथ बॉन्डेड हैं वो किस फॉर्म में है. तो दैट बॉन्डिंग फोर्सेस अगर हम कंसीडर करके इनको क्लासिफाई करते हैं तो दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स: मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स एंड एक है आपके पास कोवेलेंट सॉलिड्स, फोर्थ वन, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स. क्लियर? अब ये किस बेस पे क्लासिफिकेशन है दैट विल सी. बेसिक जो क्राइटेरिया हमने लिया है बॉन्डिंग और अट्रैक्टिव फोर्सेस का, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्टिव फोर्सेस हाउ दीज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर क्लासिफाइड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. अब थोड़ा सा ना नाम में ही उनका मतलब है. मॉलिक्यूलर सॉलिड्स मींस जिनमें आयंस नहीं है. हमारे पास जो 2 कंपाउंड है ना, 2 टाइप के, एक आयनिक होते हैं, एक होते हैं मॉलिक्यूलर. आयनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं, और मॉलिक्यूलर कभी भी ब्रेक डाउन नहीं होगा, मतलब वो अपने सिंगल मॉलिक्यूल उसी फॉर्मेट में रहेंगे. तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दे आर मॉलिक्यूल्स. और फोर्सेस क्या होंगे, अब ये डिपेंड करेगा कि वो मॉलिक्यूल्स किस तरह का है. अगर बिल्कुल नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो इट विल हैव डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस. इफ द मॉलिक्यूल इज पोलर, मतलब कोई उसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गया, पोलर कंपाउंड है, देन इट विल बी डाइपोल इंटरैक्शंस, इंटरैक्टिव फोर्सेस जो होंगे, क्योंकि एक चीज को सॉलिडिफाई करने के लिए इंटरैक्टिव फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर इतने टाइप के हो सकते हैं. मतलब पोलर है तो डाइपोल इंटरैक्शंस में भी दे आर, नॉन पोलर इंटरैक्शंस जिसको हम लंडन फोर्सेस कहते हैं. एंड अगर हाइड्रोजन और ऐसा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, then these kind of molecular solids will have hydrogen bonding also. ठीक है? तो on the basis of these forces, molecular solids are classified further into 3 types: non-polar molecular solids, polar molecular solids and hydrogen bonded molecular solids. तो इनके एग्जांपल्स देखो बेटा. नॉन पोलर में जितने भी नॉन पोलर गैसेस हैं, अभी यहाँ आपको दिखने में ये गैसेस या लिक्विड लग रहे हैं, बट एक्चुअली जब भी आप इनको कूल करोगे तो दे विल आल्सो टेक फॉर्म ऑफ द सॉलिड ना. तो हमने यहाँ थ्रू आउट कंपाउंड्स को क्लासिफाई कर दिया है, क्योंकि आप सॉलिडिफाई तो हर एक चीज को कर सकते हो. ठीक है? तो जितने भी नोबल गैसेस हैं दे ऑल विल कम अंडर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. कार्बन टेट्राक्लोराइड, मीथेन गैस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, all these on solidifying they form a kind of non-polar molecular solids. physical nature soft solids बनाएंगे ये, और इंसुलेटर्स हैं क्योंकि कोई आयन वगैरह कुछ नहीं है इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए. मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो एंड जनरली दीज सब्सटेंसेस आर गैसियस और लिक्विड्स. सेकंड, पोलर सॉलिड्स में आपको डाइपोल इंटरैक्शंस मिलेंगे. एग्जांपल्स HCl, SO2, जहां पर भी आपको कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मिल रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच में, HBr हो गया, HI हो गया, ऑल दीज विल बी एग्जांपल्स. H2S गैस हो गया, ये सब पोलर के अंदर आ जाएंगे. सॉफ्ट है ये भी, इंसुलेटर्स हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि जो चीज सॉलिड स्टेट में है ही नहीं अभी रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है. हाइड्रोजन बॉन्डेड में आ जाएंगे आपके वाटर, अमोनिया, HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HF, NH3, H2O, all these molecular solids are hydrogen bonded type because they have intermolecular hydrogen bonding. ये थोड़े से हार्ड होंगे क्योंकि जब हम आइस वाटर को आइस की फॉर्म में फ्रीज करते हैं तो it forms a kind of hard solid as compared to these two, because hydrogen bonds are stronger than these forces, so these solids are hard. Again they are insulator and melting point low ही है क्योंकि वाटर भी जो है आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाता है, क्योंकि ये बेटा कंपाउंड इस तरह के हैं जिनके ये जो बॉन्डिंग्स हैं या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस हैं ये वीकर हैं एज कंपेयर टू अदर फोर्सेस. आयनिक सॉलिड्स सेकंड कैटेगरी में आपके पास आ रहे हैं. आयनिक कंपाउंड्स, ऑल आयनिक कंपाउंड्स which are made up of a positive and negative ion. तो constituent particles ions
फोर्स कौन सा होगा इंटर उनके बीच में आयंस, क्योंकि ऑपोजिटली चार्ज है, तो कूलम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी प्रेजेंट ओवर देयर. एग्जांपल्स, एनी आयनिक कंपाउंड यू कैन राइट एज एग्जांपल. हार्ड होते हैं बट ब्रिटल होते हैं. ब्रिटल का मतलब कि आपने थोड़ा सा भी प्रेशराइज किया इन आयनिक सॉलिड्स को तो वो टुकड़े टुकड़े चूर चूर हो जाते हैं. इस तरह के सॉलिड्स को हम ब्रिटल कहते हैं. ब्रिटल, व्हाई दे आर ब्रिटल? बिकॉज दे हैव अ डेफिनेट ज्योमेट्री ऑफ केटायंस एंड एनायंस. मतलब एक केटायन एक फिक्स नंबर में एनायन के साथ घिरा होता है. तो इस तरह की ज्योमेट्री की वजह से अगर आप इन पर थोड़ा सा भी प्रेशर डालते हो या फोर्स डालते हो, तो अगर एक आयन अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया so it will break down the entire geometry of the crystal. Crystal will break down into fine powder. Hence, they are known as brittle solids. They are insulators in solid state, but conductors in molten. ये आपने 10th class में भी किया है कि ion strongly held रहते हैं solid form में. तो in solid state, ionic solids are insulators, but in molten form or in aqueous medium, the ions get separated out. Hence, they can conduct electricity. Melting points are very high, not very, मतलब very इसलिए नहीं लिखा because covalent solids के इनसे भी ज्यादा high हैं, तो otherwise high melting solids होते हैं. Next is metallic solids. Metallic solids and all metals, जितने आप चैप्टर 10th क्लास में मेटल्स नॉन मेटल्स में मेटल्स पढ़ के आए हो, जिसको हम अभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में रख सकते हैं या फिर एस ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स हैं, तो ऑल दीज मेटल्स आर एक्चुअली टर्म्ड एज मेटालिक सॉलिड्स. मेटेलिक सॉलिड्स में एक्चुअली बेटा जो पार्टिकल्स है मेटल एटम की फॉर्म में नहीं होते. मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया, बिकॉज मेटल एटम्स हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, एंड ड्यू टू दिस लो आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज in their crystal structure, all metal atoms are present in the form of positive ions, and these positive ions are called kernels. KERNEL. If you want to write this term, metal kernels कहते हैं इनको. जो वो होते क्या है? The positively charged metal atoms due to their very low ionization enthalpy, और इनके अराउंड delocalized इलेक्ट्रॉन रहते हैं. हर एक मेटल ने जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं वो उसके अराउंड मूविंग फॉर्म में रहते हैं. तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मेटल की जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है उसको एक थ्योरी में एक्सप्लेन किया हुआ है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, कि इलेक्ट्रॉन का एक मूविंग सी है, उसके अंदर जगह जगह पे मेटल कर्नल्स प्रेजेंट है. ठीक है. और जो इस तरह की बॉन्डिंग है जिसमें एक मेटल का पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन्स के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्डेड रहता है, दैट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज मेटालिक बॉन्डिंग. दिस बॉन्डिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास 11th इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है. तो metallic bonding is present in metallic solids. Examples, any type of metal you can write. Hard but malleable and ductile. ये जो specific properties आपको मिलेंगी transition elements में, वो किसी और solids में नहीं है. So they are metallic solids which can be beaten easily, which can be drawn into thin wires easily. Conductors, they all are good conductors. Reason, they can conduct heat and electricity due to फ्री इलेक्ट्रॉन्स. जो ये इलेक्ट्रॉन सी प्रेजेंट है इनके क्रिस्टल्स में, वो इलेक्ट्रॉन्स किसी भी टेम्परेचर पे इजीली मूव कर जाएंगे. इनके लिए प्रॉब्लम नहीं है कि सॉलिड स्टेट में कंडक्ट कर पाएंगे कि नहीं. आयनिक क्रिस्टल्स कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड, बट मेटालिक सॉलिड्स कैन इजीली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर वेरी हाई. लास्ट टाइप ऑफ सॉलिड इज कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स. एटम्स होते हैं इसमें, जैसे डायमंड का एग्जांपल ले लो, फुलरिन ले लो, ग्रेफाइट ले लो, और एग्जांपल्स में आपको ये एग्जांपल्स और भी, सिलिका क्वार्ट्ज इज अ काइंड ऑफ नेटवर्क सॉलिड, डायमंड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड, और कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट. ऑल दीज आर एग्जांपल्स. कोवेलेंट सॉलिड्स हैं ये, क्योंकि कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स हैं इसके अंदर, एंड बॉन्डिंग इज कोवेलेंट. हार्ड सॉलिड्स है, एक्सेप्शन है ग्रेफाइट का विच इज सॉफ्ट. और ग्रेफाइट की सॉफ्ट स्ट्रक्चर आपने पढ़ी हुई है क्योंकि उसमें लेयर्स, हेक्सागोनल रेयर्स वॉन्डर वॉल फोर्सेस के थ्रू बॉन्डेड रहती हैं, and these layers can slip over each other. That is why graphite is soft and slippery. But otherwise, these all solids are hard substance. Hardest है rather diamond, silicon carbide, aluminium nitride. ये तीनों ना मतलब most hard जो substances हैं उनकी कैटेगरी में आते हैं. These are insulators because no free electrons are there. But exception again graphite का, which is a good conductor, and
these because covalent bonds are very strong and directional होते हैं नेचर में covalent bond, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे आपने sp3 sp3d किया ना, xyz पर्टिकुलर बॉन्ड एंगल्स के साथ ये बॉन्ड्स बने होते हैं. दैट इज व्हाई दीज कोवेलेंट सॉलिड्स आर आल्सो नोन एज डायरेक्शनल सॉलिड्स कहते हैं इनको. एंड these have bonded with very strong covalent bonds, hence they have very high melting and boiling points. अब इसमें एक क्वेश्चन है, classify the following solids in different categories: potassium sulfate, ionic solid, tin, metallic, benzene, non-polar molecular solid, urea, polar molecular solid, ammonia, hydrogen bonded molecule. ये तीनों